quite a few times. Okay, so this will be the layout that we will going to make in the front end part, and this is how the app will actually work. So let me just build this app and the emulator will start. Okay, in the meantime, can you guys tell if you are good to go in English, or should I use both Hindi and English? Both, sir. Continue with Sir, English. you can use both Hindi and English. Okay. I'll continue both in Hindi or in English. सो ये हमारा एमुलेटर है और ये हमारी फ्रंट एंड स्क्रीन होगी जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपनी ऐप में, ठीक है। और ये हमारी ऐप है जो कि यहाँ पर अभी बिल्ड होकर के तैयार होने वाली है। आई गेस इसमें ऑलरेडी है ये बिल्ट। ओके, सो दिस इज़ द ऐप दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड टुडे। इट्स जस्ट अ बेसिक ऐप और इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा अलग फंक्शनैलिटी नहीं दी है हमने, बहुत ही सिंपल रखा है इस ऐप की बैक एंड कोडिंग को भी हमने। ओके, सो ये वापस से हमारी इंस्टॉल होने के लिए रेडी हुई हुई है। ओके, you can see the image on the screen, right? Yes, sir. Yes. Okay, so these are the screens that we are going to make. First is press 1 for heads, press 2 for tails, and press 3 for draw. This is quite amusing that we have already included the third button for the ease. Actually coin में ऐसा होता नहीं है कि हम लोग coin toss करें और third वाला draw भी आ जाए, but we will see what is a draw. So I have just written 3 here, and I have just pressed the button toss, and as you can see that I have won in the first round only. As you can click the button, you can see the various results that are being shown in here. Like this is the heads, and I have chosen draw, so the I have lost the game already. So this is the game, and this is the this is a draw one. Okay, so many of you have already watched Shivaji the Boss, I guess. So in that movie, we have seen that the coin has been, on both of the sides. So I have just taken this also. Okay, so this is the app that we will be going to make. So how many of you are interested in making this app? You can just raise your hands. And it will be a very good project for your resume as well. You can post it on your GitHubs, and it will be very good to show the recruiter that you have made quite a good projects and basic ones. Okay, so many of you are already interested, and that's great. Okay, so why not let's just jump into the app part and just build it off. So first of all, I'll just close this project. Okay, so are you guys ready with your Android Studios right now? If you are not ready, then it is also not a problem, because we will be providing you with the recordings of this session, and also the source code that we are building right now. The whole source code will be available to you on our GitHub repo. So we'll be giving you that also. So after this session also, you can refer to the code itself. Okay. Sir, we So can develop app on IntelliJ. No, actually IntelliJ IDE is not for making an app, because वहाँ पर हम सिर्फ Kotlin की ही कोडिंग कर सकते हैं। हम लोग XML नहीं चला सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। Sir, another rather than Android Studio. आप VS कोड का यूज़ कर सकते हैं, बट VS कोड के लिए आपको अलग से उसके अंदर डिपेंडेंसीज डालनी पड़ेगी, एक्सटेंशंस डालने पड़ेंगे, एमुलेटर डालना पड़ेगा, और उसमें बहुत सारा क्या डिस्टर्बेंस हो जाता है कि मतलब आपको JDK भी इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। JDK भी Yes, इंस्टॉल sir. करना पड़ता है आपको, और उसको पाथ्स जो है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेट करके देना पड़ता है उसको। बट एंड्रॉइड स्टूडियो आप इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, वो JDK ऑलरेडी सेट करके देता है आपको, आपको कुछ भी अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। Okay, sir.
ओके, सो हम एक बार एंड्रॉइड स्टूडियो पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी एक बार हो सकता है तो देखेंगे एक बार, ठीक है। ओके, सो लेट्स जस्ट बिल्ड अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर इस स्क्रीन पे मैंने आपको पहले भी अपने सेशन में बताया था कि ये क्या कौन सी स्क्रीन होती है। तो हम लोग अभी के लिए एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं अपनी ऐप बनाने के लिए हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन का नाम देते हैं। सो लेट्स सपोज वी टेक दिस एप्स नेम एज माई कॉइन टॉस एप्लीकेशन। ओके, सो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसको मैं लॉलीपॉप ही रखता हूँ क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस में अभी भी मतलब लॉलीपॉप ही इंस्टॉल्ड है। इससे छोटे वर्जन आई डोंट थिंक दैट किसी के पास में होंगे। सो वील जस्ट स्विच टू लॉलीपॉप। इससे कम वर्जन्स पे ये वाली ऐप नहीं चलेगी हमारी, ओके। लॉलीपॉप इज द लीस्ट वर्जन ऑन विच आर ऐप विल वर्क। सो लेट्स जस्ट फिनिश दिस and let the Gradle just build. In the meantime, if you guys have any doubts till now, you can just ask them in the chat line, or you can just unmute yourself. Okay, you are not in the WhatsApp group. Okay, so Dhaval, from which GDSC do you belong to? Okay, so can you please provide me the last class video links? Okay, there are a lot of recordings available on our YouTube channels. GDSC AUM, I guess Tushar has already posted all the sessions recordings, Yes, and and GDSC Purnima. and yesterday's recording will be put up by day end. Okay, okay, okay. I'll just share the link of the channel. Yeah. Guys, I just request you to not to open your mics unless you are needed to. Okay. Aman, is there any doubt that you want to ask to us? Okay. Uh, I am not in any of the GDSC group. Okay, no problem, Aman. Dhaval, we'll just provide you with the WhatsApp group links also at the end of the session. Okay, that's not an issue. Uh, it is my first session. No problem. If it is your first session, we are just going to build the app from scratch itself, and there are no heavy functions that we are going to use here. It's just a basic app. And Tushar has already shared the recording of previous sessions. So if you have missed any of these sessions, then you can just refer to that. Okay. So now our Gradle is ready and built up. So let's just start off with the front end part first, so that because many of you have already done the front end part. So what you have to do is to just this is your project directory. In this, you will just have to go to your res. Res stands for resources. Okay, it is a short form for resources that Android Studio already has given to us. And if you make any app from the scratch, then these are the folders that you will be surely getting. Okay, these are the folders that Android Studio builds for you. Okay, so in this res folder, we are going in the layout folder, and in the layout folder, we have activity main.xml. So as you guys have already known that XML is the part that we design the front end part. Okay, यहाँ पर हम अपना front end जो भी part होता है जो user को दिखने वाला है, वो part हम यहाँ पे design करते हैं, right? Okay. So यहाँ पर आपको already एक screen design करके देता है Android Studio by default, और इसका नाम होता है Hello World. Okay. So अभी के लिए हम इसको delete कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि वो जो हम मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी स्टार्टिंग के सेशन में, तो उसमें हम लोगों ने एक इमेज देखी थी पीछे, ठीक है। वो इमेज कैसे लाते हैं हम, वो इमेज लाने का मैं आपको तरीका दिखाता हूँ एक बार। ओके, ठीक है। ये इमेजेस ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है यहाँ पर, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस। ओके, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी। तो मैं इन सारी इमेजेस को कॉपी करता हूँ, ठीक है।
ये मैंने कर लिया इन इमेजेस को कॉपी। उसके बाद मुझे क्या करना है, इन इमेजेस को मुझे यूज़ करना है, तो मैं उसको कहाँ पे डालूंगा। मैं गया अपनी प्रोजेक्ट फोल्डर पे, यहाँ पर ही जाएंगे हम रेस, ठीक है। यहाँ पर ये ड्रॉएबल्स फोल्डर दिखेगा आपको, इस ड्रॉएबल फोल्डर पे आपको क्लिक करना है और कंट्रोल यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। ये आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ पर डालने हैं, तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं ड्रॉएबल वर्जन 24 सिलेक्ट करता हूँ अभी के लिए, और ओके कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ओके करने से क्या होगा, मैंने अभी जो भी इमेजेस कॉपी करी थी वो मेरी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरी सारी इमेजेस जो है वो कॉपी होकर के मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो गई है। तो अब इन इमेजेस को मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि बाहर तो कितनी भी इमेजेस पड़ी हुई हो, हम लोग सारी इमेजेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें अपने प्रोजेक्ट को बताना पड़ेगा कि वो इमेजेस कौन कौन सी जो हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वो इमेजेस हमने यहाँ पर उसको बता दी है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अब हम इमेजेस को यूज़ करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर इमेज डालेंगे। तो इमेज कैसे डालनी है हमें, आप यहाँ पर देखोगे एट्रीब्यूट्स में, यहाँ पर बहुत सारी फंक्शन जैसे बटन हो गया, इमेज व्यू हो गया, रिसाइकलर व्यू हो गया, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे कभी बाद के सेशंस में। बट अभी हम लोग काम कर रहे हैं इमेज पे, ठीक है। तो इमेज पे के लिए हम क्या करेंगे, सीधा इमेज को यहाँ से ड्रैग करेंगे और इधर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी थी वो इमेजेस, मैंने आपको अभी करके भी दिखाई थी, तो मैं यहाँ पर ये वाली इमेज चूज़ करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये इमेज यहाँ पर इंपोर्ट होके आ चुकी है। अब ये ऐसे तो अच्छी लग नहीं रही है हमको, तो इसको हमें कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट हम कैसे करेंगे, इसका जो लेफ्ट वाला कॉलम है ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। ये हमारी स्क्रीन है, हम इसको यहाँ से चिपका देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा राइट पार्ट है इसको हम स्क्रीन के राइट से अलाइन कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट के लिए क्या करना है, ये हम इसको यहाँ से ड्रैग करके लेके गए और ऊपर वाली स्क्रीन पे हमने ड्रॉप कर दिया इसको, ठीक है। तो ये हमारी स्क्रीन जो इमेज है वो अब स्क्रीन से अलाइंड हो चुकी है कम्प्लीटली, ठीक है। तो अब ये इमेज अलाइन हो गई है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्केल करेंगे। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है वो छूट रहा है इमेज में, क्योंकि ये स्केल्ड नहीं है ढंग से। तो ये एक फ्रंट एंड पार्ट है, डिजाइनिंग का पार्ट है, आप लोग इसमें भी जा सकते हैं अगर आपको बैक एंड कोडिंग में नहीं जाना है तो, ठीक है। तो फ्रंट एंड पार्ट के लिए भी कुछ दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी एट्रीब्यूट्स अगर सर्च करने हो इमेज से रिलेटेड, तो आप बस इस इमेज को सिलेक्ट करो, ठीक है। इमेज आपने सेलेक्ट करी, उसके बाद में आप यहाँ पर एट्रीब्यूट्स उसके सर्च कर सकते हो कि इस इमेज में आप क्या क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स हो गए मेरे, यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया, तो सबसे पहले मैं इसको स्केल करूँगा, ठीक है। तो स्केल के लिए क्या है, अब मेरे पास एट्रीब्यूट स्केल का एट्रीब्यूट है, इसमें पूछ रहा है स्केल टाइप, सो मैं सेलेक्ट करूँगा फिट एक्स वाई, जिससे ये इमेज जो है वो पूरा है ना, मेरा जो कंटेंट है, जो उसका कंटेंट था वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो इससे हमने इसको एक स्केलिंग स्केलिंग दे दी, तो वो छोटा छोटा जो पार्ट छूट रहा था वो भी गायब हो गया, ठीक है। लेआउट विड्थ को मैं मैच कंस्ट्रेंट दूंगा, क्योंकि स्क्रीन से अगर हो सकता है कि इमेज अभी भी बाहर निकल जाए और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो इमेज को मैंने एक 0 DP दे दिया जिससे वो मैच कंस्ट्रेंट हो जाए, ओके। अब स्क्रीन से बिल्कुल ही एकदम ये सटा हुआ आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल चिपका हुआ आ गया है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा। वो स्केलिंग कैसे होगी, आप यहीं पे देखोगे एट्रीब्यूट्स वाले कॉलम में, नीचे यहाँ पर थोड़ा सा इसने कुछ मार्जिन्स वगैरह दे रखे हैं, कंस्ट्रेंट विजेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा 8 DP का दे दूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ गया है। ऐसा ही मैं राइट पे भी कर देता हूँ, तो अब यहाँ से भी थोड़ा सा गैप आ गया। अब क्या कह रहा है कि 16 DP ऊपर से इसने ऑलरेडी दे रखा है हमको, ठीक है। तो इसको भी मैं हटा करके 8 DP कर सकता हूँ, तो आप देखोगे इमेज थोड़ी सी ऊपर चली गई है, ठीक है। तो ये काम हो गया है हमारा, इस इमेज का वॉलपेपर वाला काम हो गया है हमारा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें टेक्स्ट व्यू देना है, ठीक है। टेक्स्ट व्यू हम कैसे देंगे, ये आप इधर देखोगे पैलेट में हमारी, यहाँ पर ऑलरेडी एक टेक्स्ट व्यू दे रखा है इनने, ठीक है। तो उसको हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा ड्रैग करके यहाँ पर ला देना है, ठीक है। ये हमने ला दिया, बट अभी कहीं भी स्क्रीन में जा सकता है। जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो ये टेक्स्ट व्यू कभी भी कहीं भी पहुंच जाएगा, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए कि टेक्स्ट व्यू फिक्स रहे। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वॉलपेपर पे ही हम इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे। ये मैंने ड्रैग किया और मैंने इधर से अलाइन कर दिया, इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया और इसको मैंने यहाँ से अलाइन कर दिया, ओके। सो ये यहाँ पर भी अलाइन हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि टॉप से भी अलाइन रहे, तो इसको मैं टॉप से अलाइन करने के लिए क्या करूँगा, इसका जो टॉप वाला सर्कल है उसको मैं इसके सर्कल से मैच करा दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये अलाइंड हो चुका है। अभी टेक्स्ट व्यू जो है वो कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, यू गाइस आर गेटिंग राइट। अभी तक किसी को भी कुछ डाउट वगैरह कुछ है अभी तक जो भी मैंने बताया? If No, you guys sir. have any doubts, you can just unmute your mic and ask in between also. ओके, सो अब ये टेक्स्ट व्यू जो हमारा आया था, यहाँ पर हमें क्या दिखाना है? यहाँ पर हमें दिखाना है लेट्स फ्लिप द कॉइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है कि हम दिखाना क्या चाहते हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं। तो इसको अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल काम है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इससे मैचिंग जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो इसकी विड्थ और लेआउट, इसकी विड्थ और हाइट को सबसे पहले अपन रैप कंटेंट दे देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इमेज इधर उधर जाएगी नहीं हमारी, कि जितना उसका साइज, जितनी उसको विड्थ लेनी है वो उतनी ही विड्थ लेगा, उससे आगे कुछ भी नहीं लेगा वो, और जितनी उसको हाइट चाहिए वो उतनी ही हाइट लेगा। ये मतलब होता है हमारे रैप कंटेंट का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक काम और नहीं करा हमने। इन चीज़ों को जो भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ना, उनको हमें एक नाम देना पड़ता है। ठीक है, जिससे हम लोग है ना अपनी बैकएंड कोडिंग जब करेंगे तब हमें पता रहे कि हम लोग यूज़ क्या करने वाले हैं, राइट, कि हम कौन सा है ना चीज़ को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा वॉलपेपर था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक आईडी दे देता हूँ। अब आईडी देने के लिए कुछ नेमिंग कन्वेंशन जो होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, गुड प्रैक्टिसेस होती है वो कोडिंग की, जिससे हमें बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हमारा वॉलपेपर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम कैसे देंगे, देखना, ध्यान से देखने वाला पार्ट थोड़ा सा। इसमें हम करते हैं IMG। ठीक है, मैंने इसको, क्योंकि ये एक इमेज है, राइट, तो इमेज है तो मैं क्या करता हूँ, उसको IMG टैग दे देता हूँ। सेपरेट करने के लिए मैं इसको अंडरस्कोर दे देता हूँ। अंडरस्कोर मैंने दिया, और इसको मैं यूज़ कर देता हूँ वॉलपेपर। ठीक है, क्योंकि हमारा ऐप का वॉलपेपर है। ठीक है, अब मैंने किया एंटर, तो ये बोल रहा है रिफ्रैक्ट कर दो उसको, तो मैंने इसको रिफ्रैक्टर कर दिया, और अब ये हमारी इस इमेज का नाम हो गया IMG वॉलपेपर। ठीक है, यही काम हम करेंगे। सबसे पहले आप कुछ भी काम करो, किसी की भी एलिमेंट को डालो, सबसे पहले आप उसकी आईडी दो और कुछ भी मत करो। ठीक है, तो मैंने इसको दी इसकी आईडी। अभी क्या है, ये टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू को देने के लिए क्या नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे हम, TXT। ठीक है, अंडरस्कोर से मैंने उसको सेपरेट कर दिया, और इमेज में क्या, टेक्स्ट में क्या दिया हमने, लेट्स फ्लिप द कॉइन। सो लेट्स सपोज हम इसको नाम देते हैं कॉइन फ्लिप, तो मैंने उसको एंटर कर दिया। तो इस चीज़ का भी आप देखोगे यहाँ पर ये चीज़ें नाम के साथ में आने लग गई हैं अब आईडी के साथ में। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये इमेज हमें अभी दिख नहीं रही है, तो इसको दिखाने के लिए हम कोई ऐसा कलर यूज़ करते हैं जिससे ये दिखे हमको ढंग से। तो कलर मैं चूज़ करता हूँ येलो, क्योंकि ब्लैक के ऊपर येलो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखोगे आपकी हल्का सा हमें दिखना स्टार्ट हो गया है, बट ये बहुत छोटा है, नहीं, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, या फिर मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये भी दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है हमें। ओके, साइज़ हम क्या देंगे, इसका साइज़ आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी कर रही है, बट मैं इसको बढ़िया दिखाने के लिए 34 SP का साइज़ लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे कि इमेज जो टेक्स्ट व्यू है वो बड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब अपने को रेड के ब्लैक के ऊपर रेड कलर अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। ये आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं इसकी क्या है। अलाइनमेंट कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया, हम नीचे आए। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल बीचों बीच में है, यहाँ से भी जीरो कंस्टेंट है, यहाँ से भी जीरो कंस्टेंट है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से 16 दे देते हैं, और यहाँ से 16 दे देते हैं, तो उससे क्या है कि ये बीचों बीच में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं करेगा बाद में भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब तक का काम। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। या किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो अनुराग। ओके, इट्स Yeah, स्वरूप। yeah, ओके, स्वरूपम, डू यू हैव एनी डाउट? Sir, hello. Yes, Am sir. I audible? Yes, Swarupam. Yes, sir. No, sir. No, sir. Everything okay, sir. Okay, so can you please mute your mic?
ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमने देखा था उस जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि एक बटन भी था। बटन डालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल बटन का टैग हमने लिया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, अब इसको अलाइन ही कर देंगे क्योंकि ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसे कहीं भी जा सकता है ये। इसको हमने उठाया, यहाँ से अलाइन कर दिया, इसको हमने उठाया और यहाँ से अलाइन कर दिया। ठीक है, अब ऊपर से भी अलाइन कर देते हैं। ऊपर से हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसके नीचे ही बटन आए, कभी भी ऊपर नहीं जाए इसके। तो हमने इसकी रेंज डिफाइन कर दी है अब कि ऊपर से भी कंस्ट्रेंट हो चुका है। ठीक है, अब बिल्कुल है ना, ये बटन जो है वो चिपका हुआ आ रहा है उसके। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो उसको मैंने एक दे दिया थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से 16 का। साइड से भी मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, तो अब ये 16 का मार्जिन आ गया, तो ये बटन बिल्कुल बीच में आ चुका है। अब ये बटन बटन तो दिखाएगा नहीं, इसको कुछ टेक्स्ट भी देना पड़ेगा। तो टेक्स्ट के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉस और इसको मैंने कर दिया एंटर। तो अब ये बटन क्या दिखाने लग गया, टॉस दिखाने लग गया हमको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बटन का काम। अब क्या करना है हमें, यूज़र को इंस्ट्रक्शंस भी तो देने पड़ेंगे कि हेड्स कहाँ पर आता है, टेल्स कहाँ पर है और ड्रॉ कहाँ पर है। अब हम देंगे उसका इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस किस व्यू में आ सकते हैं, आप में से कोई गेस कर सकता है इंस्ट्रक्शंस हम किस फॉर्म में लाएंगे, कौन सा व्यू यूज़ करेंगे हम इनमें से, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, रिसाइकलर व्यू। चलो हिंट देता हूँ, इन तीनों में से ही कोई एक यूज़ करेंगे हम इंस्ट्रक्शंस में। यू कैन जस्ट राइट ऑफ इन द चैट बॉक्स इफ यू गाइज नो और गेस। Okay, button recycler view. Yeah, very good ऋषभ. We will use the text view here because हमें यूजर को क्या दिखाना है, टेक्स्ट दिखाना है, राइट? तो टेक्स्ट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू यूज करेंगे क्योंकि इमेज इंस्ट्रक्शंस जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट व्यू को खींच करके लाया और उसको मैंने अलाइन कर दिया यहाँ से। और ये मैंने अलाइन कर दिया इसको यहाँ से, हमारे बटन से। ठीक है, और टॉप पे भी मैं इसको अलाइन करना पड़ेगा, तो मैं इसको अपने बटन के नीचे रखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू जो है वो अलाइन हो चुका है, राइट? हमने एक और काम नहीं किया अभी तक, उसको नाम नहीं दिया हमने। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं बटन को हमारे। तो इसका नेमिंग कन्वेंशन क्या रखेंगे हम, BTN शॉर्ट फॉर्म है बटन के लिए, BTN, और उसको हम रख देते हैं टॉस। राइट, तो ये हमारा बटन टॉस बन गया है। अब ये हमारा टेक्स्ट व्यू है। तो टेक्स्ट व्यू को हम क्या दे सकते हैं, हम टेक्स्ट व्यू को स्टार्ट करते हैं TXT से, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये हमारा इंस्ट्रक्शन बनने वाला है प्रेस 1 फॉर हेड्स, तो हम इसे नाम दे देते हैं TXT हेड्स। राइट, अब हम इसको कुछ टेक्स्ट भी दे देते हैं। टेक्स्ट क्या आएगा इसमें, टेक्स्ट आ जाएगा प्रेस 1 फॉर हेड्स। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया है, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब है ना, ब्लैक कलर के ऊपर ब्लैक कलर फेड कैमोफ्लेज हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कलर दे देंगे। कलर देने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, साइड में जाएंगे, सर्च करेंगे कलर। ठीक है, आप कलर सर्च करोगे, ये आ गया टेक्स्ट कलर, राइट? इस पर हमने क्लिक किया कि हमारे को बहुत सारे कलर्स दिखा देगा। हमने सेलेक्ट किया येलो कलर। ठीक है, अभी येलो कलर यहाँ पर शो होने लग गया, राइट? इसमें मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर मैं एक स्टाइल, एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, तो स्टाइल मैंने यूज़ किया, ये नॉर्मल हो रहा है, ये मैंने बोल्ड को क्लिक कर दिया। ठीक है, बोल्ड को जैसे क्लिक किया और ये बोल्ड में भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अब तक का काम। अब हमें क्या करना है, इसे हमें थोड़ा सा अलाइन करना है फॉन्ट के साथ में। या एनीबडी हैज डाउट? ओके ओके, सो हमें थोड़ा सा इसको अलाइन करना पड़ेगा। अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने कंस्ट्रेंट विजेट में। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 16 dp का मार्जिन दे देते हैं। ऊपर से भी हम इसको थोड़ा सा 16 dp का मार्जिन दे देते हैं, और राइट से भी दे देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये थोड़ी सी हमारी जो इमेज है, ये जो है, ये थोड़ी सी अच्छी दिखने लग गई है हमें। मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ थोड़ा जूम पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाकी के नीचे के इंस्ट्रक्शंस देने हैं। वो इंस्ट्रक्शंस हम कैसे देंगे उसे, ऐसे ही हम टेक्स्ट व्यू को खींच के ले आएंगे। यहाँ पर 2 टेक्स्ट व्यूज और आ जाएंगे, तो कि हमें प्रेस 1 फॉर हेड्स, प्रेस 2 फॉर टेल्स एंड प्रेस 3 फॉर ड्रॉ।
ठीक है, तो मैं फटाफट से इसको कर देता हूँ। कि मैंने इसको नाम दिया, इसका टेक्स्ट मैंने चेंज किया, और ये इसका नाम आ गया। इसको कलर दे देते हैं। मैं सबको यही कलर दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसको भी मैं एक बार कलर दे देता हूँ क्योंकि हम इसी एट्रीब्यूट पर ही हैं अभी, ठीक है। इसे भी हमने कलर दे दिया, और इसके बाद में हम थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं। स्टाइल हम यूज़ करते हैं बोल्ड। इसका टेक्स्ट व्यू बोल्ड हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारी फॉर्मेटिंग हो गई है, अब हमें थोड़ा सा इसको अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको मैं इसी के ऊपर वाले व्यू के साथ में कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसके साथ में आ गया है, और इसको भी मैं इसका राइट एंड लेफ्ट ऊपर वाले के साथ में कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको टॉप को मैं यहाँ से अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा, ये बिल्कुल चिपका हुआ आ गया, तो इसे क्या करेंगे हम, थोड़ा सा मार्जिन से टॉप दे देंगे इसको, थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, और इसे भी हम थोड़ा सा यहाँ से वो दे देंगे, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट व्यू तो रहेगा नहीं, तो इसे क्या करेंगे, ठीक है। ये हमारा ड्रॉ का केस हो गया, ठीक है। ये हमारा टेल्स हो चुका था, और ये हमारा है ड्रॉ, ठीक है। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस भी आ चुके हैं अब यहाँ पर, राइट। तो अभी तक किसी को कोई डाउट इंस्ट्रक्शंस वगैरह बनाने में? या वी शुड ऑल्सो कॉपी देम, बट अभी आपको दिखाने के लिए मैंने आपको जल्दी से ना इसको बना के दिखा दिया, जिससे क्या थोड़े बहुत लोग जिनको नहीं पता होता वो भी देख लेते हो इसको, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट, वी कैन ऑल्सो कॉपी देम एंड यू कैन जस्ट पेस्ट देम, तो वो एट्रीब्यूट्स भी वहाँ पे कॉपी हो जाते हैं उसके साथ में ही, ओके। अब हम क्या करते हैं, या ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है फॉर टेक्स्ट, हमें यूजर इंट्रो, राइट। प्रतिभा अच्छा ये देख प्लेट ओके, सो अब हमें क्या करना है, यूजर का इनपुट लेना है, राइट। यूजर का इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट में ही, प्लेन टेक्स्ट, राइट। आप टेक्स्ट में जाओगे, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, इसको आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप यूज़र का इनपुट ले सकते हो, राइट, कि हमारा जो यूज़र होगा एपीओ यूज़र, वो यहाँ पर अपना इनपुट दे सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से अलाइन कर देते हैं पेरेंट के लेफ्ट से, और यहाँ से हम इसको अलाइन कर देते हैं पेरेंट के राइट से, और यहाँ पर हम इसको टॉप से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, राइट। तो इससे होगा क्या, हमारा जो ये व्यू है वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो स्क्रीन से, मतलब हमने इसको जो कंस्ट्रेंट दिए हैं उसी पे अटैच रहेगा वो, राइट। अभी तक किसी को कोई डाउट थोड़ी ना है? ओके कूल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे लाते हैं, तो सबसे पहले हम उसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। एडिट टेक्स्ट की नेमिंग कैसे करते हैं हम, इसे हम देते हैं ET, ठीक है। और मैंने इसको क्या नाम दे, कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूँ वैल्यू, क्योंकि यूज़र की वैल्यू लेगा। इसको सबसे पहले मैंने नेम कर दिया, और टेक्स्ट में मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगा, बट हम यूज़र को एक हिंट दे सकते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। यूज़र को पता कैसे चलेगा कि आप उसको क्या पे डालना क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हिंट दे देंगे यूज़र को। हिंट देने के लिए क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट था हिंट, इसे हमने यहाँ पे क्या दिया, एंटर योर चॉइस, राइट। तो अब आप देखोगे कि आपके व्हाट्सएप वगैरह में भी होता है कि आप वहाँ पे कोई भी मैसेज टाइप करते हो, तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ आता है एंटर योर मैसेज, तो वो एक हिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक हिंट दे दिया इसको, एंटर योर चॉइस। आप हिंट का कलर भी दे सकते हो अपनी मर्जी से, कोई सा भी। मैं भी दे देता हूँ उसको एक कलर, ओके। मैंने उसको ब्लू कलर दे दिया अभी के लिए। अब ये जो एडिट टेक्स्ट है वो स्क्रीन के बिल्कुल सटा हुआ आ रहा है, ठीक है। टॉप व्यू जो था उसके बिल्कुल चिपका हुआ सा आ रहा है,
तो उसे हम थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं ऊपर से 8 की, ठीक है, तो वो बिल्कुल चिपका हुआ नहीं आएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें देना है इसमें थोड़ा सा ये हमारा एडिट टेक्स्ट का काम हो गया है। अब हमें देनी है इसमें एक इमेज, राइट। इमेज देने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज देने के लिए हम करते हैं हमारा इमेज व्यू। तो इमेज आ जाएगी यहाँ पर। कौन सी इमेज लगानी है, जब पहली बार यूज़र कोई ऐप खोले हमारी, तो हम चाहते हैं कि वो एक बढ़िया सी कोई इमेज हो जिससे यूज़र को मज़ा आए देखने में। तो हम यूज़ करते हैं इस वाली इमेज को, राइट। अब आप देखो कि ये इमेज बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, राइट। तो इसको हमें कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा बहुत थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम इसको टॉप से अलाइन कर देते हैं यहाँ से, और स्क्रीन के लेफ्ट से इसको अलाइन कर देते हैं, ठीक है। अभी भी आप देखोगे कि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसका राइट से भी अलाइन कर देते हैं एक बार, राइट। तो स्क्रीन इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसको हम इमेज को छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास में एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं हमारे पास में, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसकी जो लेआउट और विड्थ है वो आपको ऐसे कंस्ट्रेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसको 0 कर दो और इसको भी 0 कर दो, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि हमने इसकी हाइट और विड्थ दोनों को 0 0 कर दिया। तो 0 0 करने से हुआ क्या कि इमेज बिल्कुल ही गायब हो गई। अब हम इसको अपने हिसाब से कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि अभी बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही थी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन देते हैं 16 dp का, लेफ्ट से थोड़ा सा मार्जिन देते हैं 8 dp का, और यहाँ से भी दे देते हैं 8 dp का, राइट। और अब हम क्या करेंगे, इसको फिट एक्स वाई कर देते हैं। इसकी स्केलिंग गड़बड़ हुई भी थी, तो इसकी स्केलिंग सेट करने के लिए क्या करेंगे, स्केल स्केल के लिए हम क्या करेंगे, फिट एक्स वाई, राइट। तो इससे हुआ क्या कि हमारी जो इमेज थी वो स्केल हो चुकी है अभी अच्छी तरीके से, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे से भी अलाइन कर देते हैं हम इसको बॉटम से, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल स्क्रीन में फिट आ चुकी है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे से भी थोड़ा सा दे देते हैं मार्जिन, जिससे क्या है कि हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल बॉटम में नहीं आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा दे देते हैं हम 60, अच्छा रहेगा। तो अब हमारी जो इमेज है वो 60 का मार्जिन लेके चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो कि आप थोड़ा थोड़ा XML को यूज़ करोगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे, राइट। तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है, आप भी करोगे आपको भी पता चल जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया अब तक इमेज का काम। अब हमें रिजल्ट शो कराना है यूज़र को, ठीक है। रिजल्ट शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र को टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे, राइट। हम यहाँ पर टेक्स्ट व्यू को लाए, यहाँ पर हमने इसको राइट से अलाइन कर दिया, यहाँ से हमने लेफ्ट से अलाइन कर दिया, और यहाँ से राइट से अलाइन कर दिया। और हम चाहते हैं कि इमेज के हमेशा नीचे ही रहे रिजल्ट, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से अलाइन कर दिया। वन मोर थिंग, हमने इसे नेम नहीं किया था अभी तक, तो txt रिजल्ट के सॉरी, ये इमेज है तो मैं इसको img करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रिजल्ट, कि हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो यहीं से, यही वाली इमेज से आएगा, राइट। और ये था हमारा टेक्स्ट व्यू, इसे हम क्या देते हैं नाम, txt रिजल्ट, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट व्यू हो चुका है। अब हमें इसे क्या देना चाहिए, हमें इसे देना चाहिए, अभी के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं हम, तो अभी के लिए हम दे देते हैं u1, ठीक है। तो ये u1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे हमें थोड़ा सा ना अरेंज मतलब अलाइन करना पड़ेगा। अभी हमको थोड़ा सा उसको दिखाना है ना यूज़र को कि आपका क्या रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट जो आया है हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसे दे देते हैं कलर। कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम रेड कलर दे देते हैं, ठीक है। और इसका जो स्टाइल है, इसकी स्टाइल हम दे देते हैं इसे बोल्ड, ठीक है। तो आप देखोगे कि थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है, ठीक है। आप ये सब कंस्ट्रेंट्स है जो कि आप धीरे धीरे यूज़ करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप नेट पे बिल्कुल सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। तो अब हम काम करते हैं इसका, हम चाहते हैं कि ये सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल में रहे। तो इसके लिए भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, वो है हमारा टेक्स्ट ऑल कैप्स, ठीक है। आप इसको ट्रू कर दो
तो अब हमारा जो भी टेक्स्ट है वो कैपिटलाइज हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। अब यूज़र जब भी पहली बार ऐप को चलाएगा तो उसको पहले ही थोड़े ना हम रिजल्ट दिखा देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास तो कोई रिजल्ट ही नहीं है ना। तो उसे हम क्या करेंगे, इसको हिडन कर देंगे, बट वो थोड़ा सा बाद में देखते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं अच्छे से। इसका टेक्स्ट साइज जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ। इसको मैंने कर दिया 34 SP। अब आप देखो कि टेक्स्ट जो है हमारा अच्छा बड़ा दिख रहा है, और ये हमारा फ्रंट एंड पार्ट तैयार हो चुका है पूरी तरीके से अब, राइट। तो अब क्या करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, अभी क्या करते हैं, हमें यूज़र को पहले नहीं दिखाना ये चीज़, तो हम क्या करते हैं, इसे हिडन रखते हैं। तो इसकी आप विजिबिलिटी देखोगे तो विजिबिलिटी में हमारे पास 3 ऑप्शन आता है, विजिबल, इनविजिबल और गॉन। गॉन क्या होता है कि अगर इस इमेज को हम इस टेक्स्ट को हम इसके ऊपर रखते तो ये टेक्स्ट जो है वो इस इमेज के पीछे चला जाता, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इनविजिबल रखते हैं। तो जैसे ही आप इनविजिबल करोगे ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ये प्रेजेंट तो रहेगा बट यहाँ पे दिखेगा नहीं यूज़र को, ठीक है। अभी लेकिन हम लोग जैसे अभी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे विजिबल कर सकते हैं अभी के लिए, जब तक हम इस ऐप पे काम कर रहे हैं, राइट। और इसे हम थोड़ा सा इसका मार्जिन दे देते हैं, जैसे 8 DP का। तो अब ये बहुत अच्छा दिख रहा है हमें, और इसे हम नीचे से भी अलाइन कर देते हैं, और इसको भी देते हैं 8 DP का, ठीक है। तो ये अब अच्छा दिख रहा है हमें, और बहुत ज़्यादा कंसाइज भी है, कंस्ट्रेंट है ये वाला व्यू हमारा। तो अब हमारे फ्रंट एंड पार्ट तैयार हो चुका है, ठीक है। तो फ्रंट एंड से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है अभी तक, वो मुझसे पूछ सकता है। It's blueprint. Okay, so are you guys having some problem with the blueprint? No problem, I just put it to designing part only. Okay, so anyone has problem regarding this? So if you guys are understanding this much right now, then you can please raise your hand so that I can know that आपको समझ में हेलो आ रहा है सर। फ्रंट एंड पार्ट। हेलो या आदित्य, सर, ये प्रोजेक्ट हम कब सबमिट करेंगे मतलब? आपको सबमिट नहीं करना है ये प्रोजेक्ट कभी भी, ये आप अपने बना करके अपने पास में ही रख सकते हैं, राइट। हाँ, फिर रिज्यूम वगैरह में ऐड करने के लिए क्या करना चाहिए? रिज्यूमे ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो आप गिटहब पे डाल सकते हो, और वो जो गिटहब हाँ। रेपो का लिंक है वो आप अपने रिज्यूमे में प्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, ऐसे मतलब हाँ, सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं मिलेगा क्या? नहीं, इस ऐप को बनाने के लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जस्ट अ बेसिक ऐप है जिससे आप एंड्रॉइड स्टूडियो से फेमिलियर हो जाए और आपको ऐप बनानी आ जाए एक छोटी सी। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर एक लाल बटन आ रहा है, ठीक है। वो क्या आ रहा है हमारा, वो हमें एरर्स बताता है। आप जैसे ही इसको प्रेस करोगे तो ये बता रहा है हमको टच साइज इज टू स्मॉल, बट अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है ये ऐप। तो एक बार जस्ट इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारी ऐप कैसी चल रही है, ठीक है। तो जब तक ये बिल्ड हो रही है ऐप, तब तक आप लोगों को और भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ओके, शशांक को तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक। और भी लोग हैं जिनको मज़ा आ रहा है अभी तक? हेलो सर। यस, हु इज दिस? सर राकेश। सर मैं पूछ रहा था ना कि मैंने एंड्रॉइड का बेसिक कोटलिन का जो प्रोग्राम है, ओके, वो मैंने पूरा क्लियर कर लिया है। ओके। यानी कि उसका सारा सेशन भी क्लियर कर लिया, सारा टेस्ट भी क्लियर कर लिया है, ओके। और तो सर ये सेशन ज्वाइन करने से पहले यानी कि बताया गया था कि इसमें कोई सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, तो क्या ऐसा कुछ है? आपके जो भी GDSC फैसिलिटेटर हैं वो आपको बिल्कुल सर्टिफिकेट देंगे। हाँ अगर आपको बताया गया है तो आपको डेफिनेटली सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करिए आप। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, सो हमारी ऐप अब बिल्ड होके तैयार हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं हमारी ऐप। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, सो हमारी ऐप बिल्ड होकर के तैयार हो चुकी है बिल्कुल। ये हमारी ऐप का लेआउट था जो कि हमने डिज़ाइन किया था अभी तक, राइट। तो ये थोड़ा सा एमुलेटर हैंग हो चुका है। हमने अपनी ऐप का नाम क्या रखा था, माई कॉन्टॉस एप्लीकेशन। तो इसको एक बार वापस से रन खोल करके देखते हैं। तो ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी कि हमने डिज़ाइन करी थी यहाँ पर, ठीक है।
ये हमारी स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही शो करेगी। आप इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डालेंगे तब भी आपको ये बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी ऐप, राइट। और अभी इसमें आप देखोगे U1 लिखा हुआ है बट यहाँ पर नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि हमने इसकी विजिबिलिटी को इनविजिबल कर दिया था, लेकिन डिज़ाइन टाइम के लिए, कि मतलब जब तक हम ऐप को बना रहे हैं तब तक हमें ये विजिबल रहे, उसके लिए हमने क्या किया था, ये जो आप देखोगे विजिबिलिटी के भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक सेटिंग का बटन आ रहा है और एक सिंपल है। ये जो सेटिंग का बटन है ये डिज़ाइन टाइम के लिए होता है, कि हम लोग जब तक ऐप पे काम कर रहे हैं तब तक के लिए ये चीज़ रहे, ठीक है। तो हमने उसको इस टाइम के लिए विजिबल रख दिया था, बट आप जब नॉर्मली ऐप रन करोगे तब वो इनविजिबल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम टेक्स्ट को बाद में लाएंगे, वो डायनेमिकली लाएंगे हम, ठीक है। और आप देखोगे एक चीज़ और थी यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, राइट, इसमें हमने क्या किया है, इसमें है ना यूज़र जो है वो 3 ही वैल्यूज़ दे सकता है, 1, 2 और 3, जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। हम यहाँ पर टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ का। वो कैसे कर सकते हैं, आप देखोगे यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है इनपुट टाइप का। तो हमने इनपुट टाइप के फ्लैग पे क्लिक किया। अब ये बोल रहा है कि आप क्या क्या चूज़ कर सकते हो। हम टेक्स्ट पर्सन नेम को हटा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। फ़ोन के लिए है, अलग अलग है। पासवर्ड्स के लिए है, आप देखते हो जैसे आप पासवर्ड टाइप करते हो तो साथ साथ में एक डॉट चलता हुआ आता है आपके साथ में, जो कि आपको शो नहीं होने देता कि आपने टाइप क्या किया है। उसको अगर आप टेक्स्ट पासवर्ड टाइप कर दोगे तो आपको वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। बट अभी के लिए हम इस पर नंबर पे क्लिक करते हैं और हम यूज़ करते हैं नंबर साइंड। नंबर साइंड का क्या मतलब है कि नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है हमारा, राइट। और अब हम इसमें एक और कर देते हैं टेक्स्ट नो सजेशंस, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो अब ये केवल नंबर्स ही लेगा इनपुट में, ये कोई भी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं लेगा, सिर्फ प्लेन नंबर्स लेगा, वो भी नेचुरल नंबर्स, राइट। तो अभी तक हमने ये काम किया है इस पर। और अब हम जाने वाले हैं इसकी बैकएंड कोडिंग पे। तो बैकएंड कोडिंग पे जाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसी पे जाएंगे हम प्रोजेक्ट पे, ठीक है। प्रोजेक्ट पे हम गए, ये किससे कनेक्टेड है, ये मेन एक्टिविटी से कनेक्टेड है, राइट। तो ये हम गए ऐप के अंदर, जावा, ये फोल्डर और ये मेन एक्टिविटी, कि यहाँ पर भी खुला हुआ है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोडिंग करेंगे, हमारी जो भी बैकएंड की कोडिंग होने वाली है, राइट। तो हम चालू करते हैं इसकी बैकएंड की कोडिंग। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉइन का क्लास बना लेंगे, ठीक है। क्लास बनाना क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है कि हमें, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉइन टॉस एप्लीकेशन बनाई, बट हमारे ऐप प्रोजेक्ट को थोड़ी ना पता है या फिर मोबाइल को थोड़ी ना पता है कि कॉइन होता क्या है, ठीक है। तो हम अपनी ऐप को बताने वाले हैं कि कॉइन होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे उस चीज़ के लिए। क्लास कैसे बनती है, सिंपल है, आपने अगर बूट कैम्प भी कवर किया होगा तो आपने वहाँ पर भी सीखा होगा। नहीं आपने देखा है वो सेशन तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर भी बता दूंगा। क्लास हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है कि जैसे हमको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उसको यूज़ कैसे करना है, हमारे सिस्टम को बताना कि भाई मैं कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाला हूँ, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने क्लास कॉइन बनाया, मैं कॉइन क्लास ही बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें जो पैरामीटर्स मैं देने वाला हूँ, और ओके, तो इसमें जो पैरामीटर्स मैं देने वाला हूँ कि मतलब हमारे कॉइन्स के कितने फेसेस हैं, मैं वो डिफाइन करने वाला हूँ, राइट। वो मैं कैसे डिफाइन करूँगा, तो ये हमारा मेथड एक्सेस फायर हो गया कि मतलब इस मेथड के बाहर ही मतलब ये यूज़ नहीं हो सकता है वेरिएबल, राइट। वैल फेसेस, और इसे मैं दे देता हूँ कितने फेसेस होने चाहिए हमारे पास में, 3, क्योंकि हेड्स, टेल्स और एक हमारा ड्रॉ वाला केस, ठीक है। तो 3 वाले केस हुए हमारे पास में, बट वो किस टाइप के वेरिएबल हुए, मतलब वो इंटीजर हुए ना, 1, 2 और 3 क्या हैं, ये एक इंटीजर्स हैं। तो हमारा इंटीजर के लिए क्या डेटा टाइप यूज़ होता है, इंट। या तो हमने डेटा टाइप यूज़ किया इंट, राइट। और हमने इसको क्या वैल्यू दी, 3, ठीक है। तो ये हमने इसका बनाया ब्लॉक। तो अब मैंने जो प्राइवेट लिखा था, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ब्लॉक है, इसके बाहर ये जो वेरिएबल है फेसेस, ये यूज़ नहीं कर सकते हम। अगर हमने बाहर लिख भी दिया तो कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि फेसेस है क्या, क्योंकि ये फेसेस इसी तक का स्कोप है, इस ब्लॉक तक का ही। यहाँ पर हम जितने भी बार फेसेस को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते हम, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लास। इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं रोल, कि मतलब बटन दबाते ही हम क्या करना चाह रहे हैं, उस कॉइन को टॉस करना चाह रहे हैं, रोल करना चाह रहे हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया फन रोल। अब हमने क्या किया,
ये फंक्शन बनाने का सिंटैक्स होता है हमारा, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये एक इंटीजर रिटर्न करने वाला है, ठीक है। कि हमने कॉइन को रोल किया तो उसने हमें क्या दिया, या तो हेड्स देगा, टेल्स देगा, या फिर ड्रॉ देगा। हेड्स के लिए 1 है, टेल्स के लिए 2 है, ड्रॉ के लिए 3 है। तो ये फंक्शन ने रिटर्न किया हमें एक इंटीजर, राइट। तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, और इसमें हम कर देंगे रिटर्न। और अभी कैसे रिटर्न करेगा, हमें क्या रिटर्न करेगा, 1 से लेकर के 3 तक कुछ भी रिटर्न कर देगा। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, 1.3, ठीक है। फेसेस यूज़ करते हैं क्योंकि 3 हम ऑलरेडी दे चुके हैं ना, ठीक है। तो अब ये फेसेस, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये मैंने क्या लिख दिया है, किसी को समझ में आया क्या लिखा मैंने? कोई भी आइडिया किसी को कि मैंने क्या लिखा हो? इसका मतलब वैल्यू 1 से 3 तक जाए, मतलब फेस तक जाएगा जितना फेस डालेंगे। ओके, दैट्स क्वाइट अ ग्रेट। मैं बहुत खुश हूँ भाई सुन करके कि आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें, और आपने एंड्रॉइड स्टडी जैम्स और सेशंस को बहुत मतलब अच्छे से लिया है। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली वेरी नाइस शशांक, या मुस्कान, धवल, युवराज, एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो ये मैंने रेंज डिफाइन कर दी है कि 1 से लेकर के फेसेस तक, यानी 3 तक, ठीक है। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, राइट। तो अब हमने क्या किया, इसको डॉट, क्या क्या चाहते हैं हम यहाँ से इसे करवाने के लिए कि 1 से लेकर के 3 तक कोई भी वैल्यू आ जाए और वो रैंडम रहे। रैंडम के लिए हमारे पास फंक्शन होता है ये, राइट। तो मैंने क्या किया कि 1 से लेकर के 3 तक कोई सी भी एक रैंडम वैल्यू मुझे ला करके दे दो, ठीक है। यही एक फंक्शन है जो कि इसको अनबायस्ड कॉइन बनाता है, ठीक है। मतलब हम ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने डिफाइन नहीं कर रखा है कि कौन सा आंसर कब आने वाला है। ये अपने मन से कोई भी रैंडम वैल्यू चूज करेगा और उसे मिला करके दे देगा, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूँ कोई भी रैंडम वैल्यू। आप लोग, ये कमेंट्स होते हैं, कंपाइलर आप जो भी ऐसे लिखते हो ना, कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा। ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कोड में कि आपने क्या लिख दिया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है कोई भी रैंडम वैल्यू जो कि एंड्रॉयड मुझे देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास, कॉइन का क्लास हो गया, राइट। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि वो जो बटन हमने बनाया था, ये जो बटन हमने बनाया था, इसको क्लिक करते ही हमारा कॉइन रोल हो जाए। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि मतलब ये जो XML की नेमिंग हमने बनाए थे, ये जो नेम्स हमने बनाए थे, इसको यूज़ करने के लिए हम पहले यूज़ करते थे यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी। मैं आपको उससे भी करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वैल बटन। और ये किस टाइप का वेरिएबल होने वाला है हमारा, कोलन लगा के मैं इसका टाइप डिफाइन कर देता हूँ। ये होने वाला है हमारा बटन, राइट। मैंने बटन डिफाइन कर दिया, इक्वल टू एक हमारे पास फंक्शन होता है फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू, ये देखो आपने सजेशन भी देख लिया होगा, एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत एक स्मार्ट कंपाइलर है। फाइंड व्यू बाय आईडी। अब फाइंड व्यू बाय आईडी, वो नाम क्या है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं इस बटन का, इसका है BTN टॉस। बट ये कौन से फोल्डर में है, कहाँ पर है ये है हमारा रेस में, ड्रॉएबल्स में, और सॉरी ये है बटन हमारा रेस फोल्डर के अंदर, ठीक है, और लेआउट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, रेस के लिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, एंड्रॉइड समझता है कैपिटल R से, ठीक है। रेस फोल्डर का हमारा क्या समझ, एंड्रॉइड कॉटन क्या समझता है, कैपिटल R से। R डॉट, डॉट का क्या मतलब है, डॉट का मतलब है कि रेस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो मुझे ला करके दे दो, राइट। R डॉट, तो R डॉट क्या था मेरे पास, आईडी था ना, वो जो उसको नाम दिया था R डॉट ID डॉट, क्या आईडी दी थी हमने उसको, BTN टॉस। क्या हुआ, ये क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने लिख दिया कि जो बटन नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है, ठीक है, ये जो बटन नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है उसको एसोसिएट कर दो हमारी कॉटलिन XML फाइल से। कैसे एसोसिएट कर दो, इसको जो मैंने नाम दिया था BTN टॉस, उसको ढूंढ के लाओ, फाइंड व्यू बाय आईडी, उसको नाम ढूंढ आईडी से ढूंढ करके लाओ। कहाँ से ढूंढ के लाओ, R से ढूंढ के लाओ, रिसोर्स से ढूंढ के लाओ। किस चीज़ का वेरिएबल है वो, आईडी का वेरिएबल है, आईडी का वेरिएबल है, उसको ढूंढ के लाओ। अब नाम क्या है उसका, BTN टॉस। इस चीज़ को ढूंढ करके ले आओ, ठीक है। यही काम हमको करना पड़ेगा, जो भी हम चीज़ यहाँ से यूज़ करेंगे ना कॉटलिन फाइल में हमारी, उन सब चीज़ों के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी,
ठीक है। बट हम लोग हर चीज़ के लिए थोड़ी ना कर सकते हैं, ये तो हम बहुत छोटी ऐप बना रहे हैं इसलिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट बार बार थोड़े ना हम लोग इस चीज़ को लगाते रहेंगे, ऐसे तो जाने कितनी चीज़ें बन जाएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको शॉर्टन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ आज। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम रिड्यूस कर देगी। हम जाएंगे यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में, आप देखोगे यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, इसमें आपने ग्रेडल स्क्रिप्ट्स पे क्लिक किया। ग्रेडल स्क्रिप्ट्स पे क्लिक करने के बाद में आप ये देखोगे यहाँ पे दो ग्रेडल है, बिल्ड और ग्रेडल है। एक है प्रोजेक्ट लेवल और एक है मॉड्यूल लेवल। हम काम करेंगे मॉड्यूल लेवल पे, ठीक है। हमने मॉड्यूल को क्लिक किया, यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, आईडी कॉटलिन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद नहीं रखना है तो मैं आपको उसकी भी एक ट्रिक सिखा देता हूँ। सिंपल कुछ भी नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज़ यहाँ पर, ये लाइन, ये वाली लाइन, इसको सिंपली कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो। एक्स्ट्रा में क्या लगा दो, एक डैश एक्सटेंशंस। ये आपको छोटा सा काम करना है और इसको लगा करके सिंक नाउ कर दो, ठीक है। आप जब भी यहाँ पर कोई चेंजेस करते हो ना, आपको सबसे पहले उसे सिंक करना पड़ेगा, अपने एंड्रॉइड को बताना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर ये चेंजेस कर दिए हैं और आपको इस चेंजेस को आपको अप्लाई करना है, राइट। ये हमारा छोटा सा काम था जो कि हमने कर दिया। अब इसका मैं मैजिक दिखाता हूँ आपको, हमने किया क्या। अभी आप देख रहे हो कि मैंने बटन वेरिएबल बनाया, मैं फाइंड यू बाय आईडी चलाया और i.id.button डॉट ढूंढ करके लाया यहाँ से, है ना। इतनी बड़ी सारा काम किया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अभी देखो, मैंने इस लाइन को हटा दिया, मैंने इस लाइन को हटा दिया। अब मैं वो जो बटन बनाया था ना, हमने आईडी बनाई थी, ये रहा, ये जो हमने बटन btn टॉस बनाया था, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, btn टॉस। ये देखो आपको सजेशन भी मिल गया यहाँ पर, btn टॉस। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हमें वो सब नहीं करना पड़ेगा, r.id.find वो सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप यूज़ करो उस चीज़ को, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हम इससे करना क्या चाह रहे हैं, इस बटन को दबा करके करना क्या चाहता है एंड्रॉयड, वो हमें बताना है एंड्रॉयड को। तो उसके लिए क्या फंक्शन होता है हमारे पास में, किसी को पता है वो क्या फंक्शन होता है, डॉट कुछ आइडिया किसी को। हाँ, बाइंडिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं, व्यू बाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं हम, वो भी एक तरीका है बाइंडिंग का भी। बट मैंने आपको इस तरीके से इसलिए सिखाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है और बाइंडिंग वाइंडिंग कुछ भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सा काम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हम उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर। वो क्या होता है, ऑन क्लिक लिसनर, हम जैसे बटन को दबाया तो इसमें इवेंट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो वो इवेंट क्या होते हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कुछ सुनना भी तो चाहिए ना, मेरे क्लिक को सुनना भी तो चाहिए एंड्रॉयड। तो उसके लिए फंक्शन होता है हमारे पास में सेट ऑन क्लिक लिसनर। वो देखो उसमें सजेशन भी आ गया, मैंने उसको ओके किया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ फ्लिप करने वाला हूँ अपने कॉइन को। कॉइन को फ्लिप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो फ्लिप कॉइन के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बना लिया अपना फ्लिप कॉइन। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे कॉइन को जो है वो रोल करेगा, राइट। रोल करने के लिए क्या करेगा, वो हम कोडिंग आगे की करेंगे, ठीक है। ये हमने कॉइन को रोल करने की कोडिंग करेंगे आगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया था और उसके आगे मैंने इंट लिखा था, बट यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है वो इंटीजर रिटर्न करेगा, बट ये जो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर यूनिट भी लिख सकते हो, बट क्या करना है, मतलब देखो, आप देखो, दिखाता हूँ आपको एक चीज़, रिडंडेंट यूनिट रिटर्न टाइप। रिडंडेंट मतलब का क्या होता है कि हमने जो यहाँ पे चीज़ लिखी है वो नेसेसरी नहीं है, आपने ज़बरदस्ती लिख दी है। एंड्रॉयड हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको रिमूव कर सकते हो, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो एक स्मार्ट कंपाइलर है जो कि आपको हर लेवल पे हेल्प करता है डेवलपर की, राइट। इसलिए डेवलपर सजेस्ट करते हैं कि आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो का ही यूज़ करें, क्योंकि ये डायरेक्टली गूगल ने ही प्रोवाइड कर रखा है आपको, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं,
इसमें हम एक कॉइन टाइप का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो हमने यहाँ पे क्लास बनाई थी ना कॉइन, उसका हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे अब। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल का नाम डिफाइन करा और ये मैंने बना लिया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट, राइट। इसका मैं प्राइवेट हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कॉइन टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक कॉइन रोल टाइप का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, रोल जो हमने फंक्शन बनाया था यहाँ पे, ये रोल, इसको हम कॉल कैसे करेंगे, इसे हम कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे कॉइन डॉट। अब उस मेथड से एसोसिएटेड जितने भी फंक्शंस थे जो हमने बनाए थे, वो यहाँ पर सजेशंस में आने लग जाएंगे। ठीक है, ये सब फंक्शंस है जो कि हम लगा सकते हैं। बट हमने क्या फंक्शन बनाया है, यूजर डिफाइंड, हमने रोल फंक्शन बनाया है, तो हम रोल फंक्शन को कॉल कर लेंगे, राइट। हमने इसको कॉल कर लिया, तो रोल ने क्या दिया मुझे, एक इंटीजर रिटर्न करके दिया। ठीक है, क्या इंटीजर दिया होगा, कुछ भी इंटीजर दिया होगा, 1 से लेकर के 3 तक का कोई भी इंटीजर कॉइन डॉट रोल ने मेरे को ला करके दे दिया होगा। बट अभी जो इंटीजर मुझे दिया है वो मैं कहीं स्टोर तो करूँगा, वो स्टोर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लूँगा। ठीक है, ये वेरिएबल क्या करेगा, इस वैल्यू को स्टोर कर लेगा। इसको मैंने डेटा टाइप भी दे दिया कि इंटीजर टाइप का एक डेटा आएगा तुम्हारे पास में और उसको स्टोर कर लेना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर कुछ चेक्स परफॉर्म करेंगे कि यूज़र ने जो नंबर दिया है, ठीक है, यूज़र ने जो नंबर दिया है हमें, यहाँ से जो यूज़र ने हमें वैल्यू दी है वो नल तो नहीं है। मतलब नल मतलब क्या है कि अगर उसने यूज़र ने कोई हमें वैल्यू ही नहीं दी, यहाँ पर उसने कुछ टाइप ही नहीं किया और सीधा टॉस दबा दिया, तब तो कोई वैल्यू नहीं ना हमारे पास में, तो हम क्या दिखाएंगे यूज़र को, कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। तो हम इसे क्या दिखाएंगे, इनवैलिड एंट्री। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल इफ ब्लॉक का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इफ। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये हमारा क्या है, एडिट टेक्स्ट। ठीक है, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर यूज़र वैल्यू देने वाला है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, ई वैल्यू। ठीक है, हम डायरेक्टली यूज़ कैसे कर पा रहे हैं इस चीज़ को, XML के नेम को, क्योंकि हमने वो एक्सटेंशन प्लगइन इंस्टॉल कर लिया था हमारे IDE में, राइट। 1 मिनट, ओके। तो अब वो जो यूज़र ने हमको वैल्यू दी है वो नल तो नहीं है कहीं, मतलब एम्प्टी तो नहीं है, तो et वैल्यू डॉट क्या यूज़ करेंगे, उसने जो हमें टेक्स्ट दिया है, टेक्स्ट। ठीक है, et.text डॉट इज नल और एम्प्टी। मतलब क्या हुआ इसका, कि यूज़र ने हमें कोई वैल्यू ही नहीं दी हमें। ठीक है, कोई वैल्यू ही नहीं मिली यूज़र से हमें, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न, सॉरी। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो है हमारा रिजल्ट u1, इसमें क्या दिखा देंगे हम, इसका पहले नाम देखते हैं। इसका नाम क्या रखा था हमने, txt रिजल्ट। तो हम क्या करने वाले हैं, txt रिजल्ट, देखो यहाँ पर मुझे सजेशन दे दिया, मैंने एंटर करा, txt रिजल्ट डॉट, इसका टेक्स्ट हम सेट कर देते हैं डायनेमिकली। क्या टेक्स्ट सेट कर देते हैं, इनवैलिड एंट्री, कि आपने एक इनवैलिड एंट्री दी है और आप इसको चेंज करो या फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा, और सिंपली हम रिटर्न कर देते हैं कुछ भी नहीं। ठीक है, रिटर्न यूनिट भी हम कर सकते हैं, बट अभी हमने क्या कर दिया यहाँ पर, कुछ भी नहीं, रिटर्न सिंपली, राइट। और 1 मिनट, ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया हमारा, ये हमारा डिफाइन हो गया कि यूज़र ने हमें कोई वैल्यू नहीं दी। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कुछ भी दिक्कत? वेरी गुड धवल। नो सर। ओके, हेलो या सर, ये पूछ रहे थे जो आप ये फन रोल फंक्शन डिफाइन किए हैं वो मेन एक्टिविटी का अंदर, उसको सर बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं क्या मेन एक्टिविटी से? बिल्कुल, आप इसको बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। मैं इसको अगर उठा करके बाहर डिफाइन कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, यहाँ मैंने उसको यहाँ डिफाइन कर दिया मेन एक्टिविटी के बाहर। और ये जो मेरी क्लास है, मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन इसी क्लास तक ही रहे, इससे बाहर कोई यूज नहीं कर पाए, इसमें मैंने प्राइवेट लगा दिया। आप नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंश, गॉट इट। ओके दैट्स ग्रेट। तो अभी तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है आई गेस, ठीक है। तो अब हम आगे का काम करते हैं, हमारी आगे की कोडिंग करते हैं। अब हम इस पर क्या चेक परफॉर्म करेंगे कि अब यूजर ने कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं दे दी हमें, या फिर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं दे दी जो कि 3 से ही बड़ी है। हमने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे यूजर को, 1 फॉर हेड्स, 2 फॉर टेल्स, 3 फॉर ड्रॉ। अगर यूजर ने हमें 5 दे दिया तो हम क्या दिखाएंगे अपने कॉइन में, हमारे पास तो कोई है ही नहीं ना 5 के लिए तो कुछ ऑप्शन ही। तो हम क्या करेंगे, एक और इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। इफ क्या इफ लगाएंगे हम यहाँ पर कि ईटी वैल्यू, एडिट टेक्स्ट की जो वैल्यू है, एडिट टेक्स्ट के टेक्स्ट की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू डॉट टेक्स्ट, इसे हम पहले टाइपकास्ट करेंगे स्ट्रिंग में, वरना हम इस पर इंटीजर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करने के बाद में हमने क्या किया, इसको वापस टाइपकास्ट कर दिया इंट में, ठीक है। ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या हुआ, यूज़र ने जो वैल्यू दी है उसका जो टेक्स्ट है वो लाओ सबसे पहले, उसके बाद में उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और उसे फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये टू स्ट्रिंग मैंने क्यों लगाया, अगर मैं ये टू स्ट्रिंग नहीं लगाता ना तो ये टू इंट में कन्वर्जन नहीं हो पाता, इसलिए टू स्ट्रिंग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, टू स्ट्रिंग में लाओ और टू इंट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये जो इंटीजर यूज़र ने मुझे दिया है, ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन 3 हुआ, ठीक है, अगर यूज़र ने मुझे जो वैल्यू दी हो 3 से बड़ी हुई, या फिर इसकी जगह आप और भी यूज़ कर सकते हो, या फिर और इधर से आप इसको कॉपी कर सकते हो, राइट। यही यूज़र, या फिर यूज़र ने मुझे जो वैल्यू दी वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है या फिर ज़ीरो तो नहीं है, कि मेरे पास मैं केवल 1 से 3 तक के मेथड में डिफाइन कर सकता हूँ बस, ठीक है। ये थोड़ा सा एरर दे रहा है हमें, लेट्स सी यहाँ पर और गेट का यूज़। ये जो बटन, ये जो चीज़ हमने यूज़ करी है ये और के लिए यूज़ होती है। अगर यूज़र ने जो वैल्यू दी है 3 से बड़ी है, या फिर अगर इन दोनों में से कोई भी केस ट्रू होगा ना तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होती है, अगर यूज़र ने मुझे सही वैल्यू दी है, 3 से बड़ी भी नहीं है 1 से छोटी भी नहीं है, तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जैसे एक चेक है, तो हम क्या करेंगे, txt रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट है वहाँ पर फिर से हम क्या शो कर देंगे, इनवैलिड एंट्री, और कर देंगे सिंपली रिटर्न, ठीक है। ये दो चेक्स हमारे परफॉर्म हो गए। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, अगर वैल्यू ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम हैंडल करेंगे हमारा नॉर्मल वाला केस, कि हमारे को कॉइन रोल ने जो वैल्यू दी है, राइट। हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इफ, ठीक है, इफ et वैल्यू, ठीक है, डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल टू कॉइन रोल, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। कॉइन रोल ने क्या था, कॉइन रोल हमारा ये वाला था वेरिएबल। ये वेरिएबल कहाँ से आया था, कॉइन डॉट रोल से, कि ये ऑब्जेक्ट ने अपने फंक्शन को कॉल किया रोल। इस रोल फंक्शन ने क्या किया था, हमें कोई भी एक रैंडम वैल्यू दी थी। अगर इस रैंडम वैल्यू, जो एंड्रॉयड ने हमें एक रैंडम वैल्यू दी है और यूज़र ने हमें जो वैल्यू दी है, मैंने यहाँ पर मान लो 1 दिया फॉर हेड्स, ठीक है, ये हेड्स के लिए मैंने 1 दिया, और रैंडम जो एंड्रॉयड ने मुझे वैल्यू दी वो भी 1 आई,
इसका मतलब क्या हुआ, मैं जीत गया क्योंकि मैंने हेड्स बोला और हेड्स आ गया। तो अब क्या करूंगा मैं, txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, u1। आपने जो वैल्यू दी और एंड्रॉयड ने जो हमें वैल्यू दी वो दोनों सेम थी, तो आप जीत चुके हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर ऐसा नहीं है मतलब आप हार चुके हो। आपको क्या लिखना है, क्या दिखाना है स्क्रीन पर, यू लॉस्ट। ठीक है, आपने जो वैल्यू दी और जो एंड्रॉयड ने वैल्यू दी वो दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब आप हार चुके हो, राइट। तो ये हमारा हो गया अब तक का जीतने वाला और हारने वाला केस। ठीक है, ये हमारे कुछ चेक्स है जो कि हमने परफॉर्म करे अभी तक। अब हम काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये इमेज भी चेंज हो, कि हमें पता कैसे चलेगा कि हेड्स आया है, टेल्स आया है, ड्रॉ हुआ है, कि एंड्रॉयड ने जो वैल्यू दी वो हमें पता कैसे चलेगा कि वो हेड्स आई है, टेल्स आई है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि एंड्रॉयड जो हमें वैल्यू दे रहा है वो हम इमेज के फॉर्मेट में यूजर को दिखा दें कि एंड्रॉयड ने टेल्स दिया है या हेड्स दिया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम काम करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, हम एक वेरिएबल कैसे बना सकते हैं यहाँ पर, उस वेरिएबल को बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, लेट्स सपोज वन थिंग, वैल एक वेरिएबल बना लिया हमने, वैल ड्रॉएबल रिसोर्स, या फिर अब एक काम करते हैं इमेज के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, और व्हेन, ठीक है, कॉइन रोल। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, कुछ आइडिया किसी को क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, किसी को कुछ आइडिया कि मैंने क्या लिखा था वो। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है, अगर कॉइन रोल क्या था कि ये कोई भी हमारी रैंडम वैल्यू थी जो कि एंड्रॉयड ने हमें दी। तो अगर ये वैल्यू 1 की इक्वल हुई, यानी एंड्रॉयड ने हमें 1 दिया, तो क्या करना चाहिए था, हमें सेट कर देना चाहिए था आर डॉट ड्रॉएबल फोल्डर में आता है हमारा वो इमेजेस जो हमने बनाई थी, वो कहाँ पर थी, ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर थी ना। तो आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, अब कौन सी इमेज थी जो कि हम सेट करना चाहते हैं, हम सेट करना चाहते हैं हेड, क्योंकि 1 से हेड एसोसिएटेड था। सिमिलरली आर डॉट 2 किसके लिए था, टेल्स के लिए था, तो ड्रॉएबल डॉट क्या आना चाहिए था, टेल्स आना चाहिए था, तो वो रहा टेल्स। ठीक है, अब 3 के लिए क्या एसोसिएटेड था, ड्रॉ, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट ड्रॉ। ठीक है, क्या किया इसने, हमारी इमेज जो है, ये इमेज जो है ये क्या लेगी, क्या वैल्यू लेगी, कौन सी इमेज है ये वो लेगी जो कि एंड्रॉयड से एसोसिएटेड होगी, राइट। कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर कॉइन रोल बनाया, ठीक है, कॉइन रोल मैंने जैसे बनाया यहाँ पर, तो 1 मिनट, इसमें एक एल्स भी देना पड़ता है हमें, अगर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 के लिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, एल्स लिख देंगे। ठीक है, एल्स के केस के लिए हम लोग लिख देते हैं आर डॉट। ठीक है, तो ये इमेज क्या वैल्यू लेगी, अगर 1 आया तो उसको हेड्स वाली इमेज दे दो। ये देखो साइड में इमेजेस भी आ गई अपनी, ये देखो हेड्स के लिए ये इमेज है, ड्रॉ के लिए ये इमेज है, और टेल्स के लिए ये इमेज है। ये इमेज वो वैल्यू बन जाएगी जो कि एंड्रॉयड हमें वैल्यू देगा, राइट। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी इमेज थी, इस इमेज को हमें चेंज करना है ना। इसका नाम क्या था, img रिजल्ट। इस इमेज को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, img रिजल्ट का क्या करना है हमें, सेट, इसके लिए फंक्शन होता है सेट इमेज रिसोर्स। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये फंक्शन होता है सेट इमेज रिसोर्स। किस इमेज रिसोर्स से सेट कर दूं, मैंने जो इमेज ली है उससे सेट कर दो। अगर मान लो कि कॉइन रोल ने मुझे वैल्यू दी 1 मतलब हेड्स दिया, इसका मतलब क्या करो, ये जो इमेज है 1 वाली हेड्स वाली, ये जो इमेज है इसको सेट कर दो यहाँ पर, इस स्माइली की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड्स वाली इमेज आ जाएगी। ठीक है,
वो वाली इमेज आ जाएगी यहाँ पर। अब क्या कर देता हूँ मैं, ठीक है इतना बहुत है। यहाँ तक हमारी जो भी ऐप है वो बनके तैयार हो चुकी है, राइट। और एक चीज़ और है जो कि हमने अभी तक नहीं करी है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये जो चीज़ थी इसको मैंने अभी तक हिडन रखा था, है ना। हिडन क्यों रखा था मैंने, क्योंकि मैं चाहता था कि जब यूज़र कोई वैल्यू दे और बटन प्रेस करे तब यहाँ पर टेक्स्ट कुछ शो हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ की कोडिंग हमने अभी तक नहीं करी थी। सबसे बड़ी बात, जैसे ही बटन प्रेस हुआ तब क्या कर दो, फ्लिप कॉइन जो फंक्शन है उसे कॉल कर दो। ये जितनी भी कोडिंग हमने करी वो सब कॉल हो जाएगी। अब मैं क्या कर देता हूँ, फ्लिप कॉइन, ठीक है, फ्लिप कॉइन कर दिया। और इस इमेज को अभी तक, ये अब तक हिडन है, ये अभी तक इनविजिबल है, इसे विजिबल कर दो। विजिबल कैसे होगा, इसका नाम क्या था टेक्स्ट का, इसका नाम था txt रिजल्ट, txt रिजल्ट, ठीक है, डॉट इज विजिबल, ये फंक्शन होता है हमारा, ठीक है। इज विजिबल, क्या विजिबल है, इसे कर दो ट्रू। यस, अब ये विजिबल है। यहाँ पर जो हमने काम किया था ना अब तक, ये जो हमने काम किया था विजिबिलिटी इक्वल टू इनविजिबल, वो हम यहाँ पर कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं। txt रिजल्ट डॉट इज विजिबल इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या ये विजिबल है, यस ट्रू, इट इज ट्रू। अब ये विजिबल होने लग जाएगा, राइट। अच्छा, अगर ये सब चीज़ें नहीं है हमारी, तभी हम एक बार के लिए फ्लिप कॉइन को तो कॉल कर ही देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अगर मान लो यूज़र ने कुछ खोला तो उसको एक्टिविटी दिखनी तो चाहिए ना कुछ, ठीक है। ये हमने इतना सा काम कर दिया। अब तो अब हमारी ऐप बिल्कुल रन बन के तैयार हो चुकी है। लेट्स रन दिस ऐप। किसी को कुछ भी डाउट अभी तक, इस जो अभी तक मैंने पढ़ाया? Very good, Shashank. You really have a good knowledge about Android, I must say. Yeah, Javed, actually, when we use when, it is in C language, it is switch, and in Kotlin, it is called when. Okay? So you are absolutely right. We are using the switch case. Yeah, Muskan. Okay. तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है मुझे। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इनिशियली क्या किया था, ओके, ये जो चीज़ थी हमने इसको इनविजिबल सेट किया था। अभी मान लो कि मैं कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है, मैंने सीधा टॉस दबा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इनवैलिड एंट्री। ये कैसे आया, ये चीज़ मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। हाँ, ठीक है, मैंने कुछ भी यूज़र को वैल्यू नहीं दी, यूज़र ने, मैं यूज़र हूँ अभी, ठीक है, मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दी, सीधा टॉस दबा दिया, कुछ भी सोचे समझे बिना टॉस दबा दिया। ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। इज नल और एम्प्टी, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इज नल और एम्प्टी, क्या सेट कर दो यहाँ पे टेक्स्ट में, इनवैलिड एंट्री। और ये शो कैसे होने लगा, ये शो होने लगा txt result डॉट इज विजिबल इक्वल टू ट्रू से शो होने लगा, ठीक है। ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ, ये वाला ब्लॉक चलाते हैं हम, सेकंड वाला। इफ मैं देता हूँ उसको 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू, 5 देता हूँ मैं, ठीक है, मैंने इसको वैल्यू दी 5 और कर दिया उसको टॉस। 1 minute, I am just facing issues in the emulator right now. Let's just restart this. एक्चुअली टीम्स भी चल रहा है और एंड्रॉइड स्टूडियो भी चल रहा है, एमुलेटर भी चल रहा है। वो आप लोग समझते हैं थोड़ा सा कि सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है और एमुलेटर इस कंडीशन में थोड़ा सा वियर्डली बिहेव करने लग जाता है। इन विच अरेंज बी टाइप कोड, सर ग्रेडल में कैसे करा था एडिट? ग्रेडल का जो एडिट था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप प्रोजेक्ट में जाओगे, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाओगे, ग्रेडल बिल्ड और ग्रेडल में जाओगे, ठीक है, आपको इसको कॉपी करना है। ये ऑलरेडी, ये वाली लाइन जो है आपको ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो में गिवन होगी, इसको आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है और हाइफन एक्सटेंशंस ये लिख देना है और यहाँ पर सिंक नाउ कर देना है, ठीक है। ये थे हमारा ग्रेडल का सेटिंग।
दिस ऐप। आप जब एक डेवलपर बनेंगे तो आपको ऐसे इश्यूज थोड़े थोड़े फेस करने पड़ेंगे जो कि आपको खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट? तो ये सब चीज़ें भी आप अगर सर्च करते हैं तो ये आपके डेवलपमेंट में ही काम करती है, राइट? तो अभी मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो ये चल नहीं रहा था एमुलेटर, तो ये मैंने एक्चुअली स्टैक ओवरफ्लो से देखा था सोल्यूशन इसका कि कैसे हम कर सकते हैं। इसको आप बंद कर दो और उसको कोल्ड बूट कर दो। उससे होगा क्या कि एंड्रॉइड ये जो हमारा एमुलेटर है ये फिर से रीस्टार्ट होने लग जाएगा, राइट? तो अभी थोड़ा सा तैयार होगा हमारे लिए थोड़ी देर में। तो आई गेस हमने ग्रेडल का बता दिया है। एनीवन कंप्लीटेड? ओके, यस। आपको अपनी डेवलपर प्रोफाइल जो है वो अपने फैसिलिटेटर के साथ में शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने वो शेयर नहीं करी तो उससे होगा क्या कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक नहीं हो पाएगी और आपके फैसिलिटेटर को पता नहीं चलेगा कि आपने काम कर लिया है, कि आपने 16 के 16 बैजेस अर्न कर लिए हैं नहीं करे हैं। तो सर या कहाँ पे आपके फैसिलिटेटर ने आपको बताया होगा कि या तो उन्होंने गूगल फॉर्म रिलीज किया होगा या फिर उन्होंने आपको बोला होगा कि आप मैनुअली उनके साथ में जाके शेयर कर दीजिए। तो सर गूगल फॉर्म में शेयर किया था। आप कौन से राकेश, आपके कॉलेज में शायद जीडीएससी नहीं कोई भी है ना? हाँ सर, नहीं सर, RSVP। नहीं, आरएसवीपी तो आपने कर लिया, नो प्रॉब्लम। बट आपके कॉलेज में कोई जीडीएससी एसोसिएटेड है जिससे मतलब आप फैसिलिटेटर है आपके कॉलेज में कोई भी? नो सर, ओके, नो ऑनलाइन प्रॉब्लम। किया था। तुषार? ओके, नो प्रॉब्लम। तुषार, आर यू देयर? No worries, तुषार no. इज ओके। हेलो अक्षत। Yeah, hello. Akshat, can you help Rakesh so that he can submit the form to you and you can give him the certificate? Yes, sure. Okay. Sir, I also don't have any facilitator, sir. Okay, those who don't have any facilitators, just type in your name and your college name, ठीक है? और Akshat Yes. will add you to his take you under his facilitation. Yes, yes. Okay, thank you, Akshat. So now हमारा Pixel is starting. I guess someone's mic is on. Rakesh, can you please mute yourself? Yes, sir, sorry. So अब हमारा एमुलेटर बिल्कुल तैयार है, तो हम एक बार वापस अपनी ऐप को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, टॉस कर दिया इनवैलिड एंट्री, वैल्यू 5 दे दी और फिर टॉस करेंगे वापस से इनवैलिड एंट्री, क्योंकि 5 कोई एंट्री ही नहीं है। आप दो, देना है तो 1 दो। आपने 1 दिया और ये क्या हुआ, ड्रॉ का केस था ये। मैंने दिया हेड्स वैल्यू और एंड्रॉइड ने दिया ड्रॉ का वैल्यू, दोनों मैच नहीं हुए तो ये हो गया लॉस। ये देखो ये वाला केस चला यहाँ पर, इसने क्या वैल्यू उठाई 1, ये वैल्यू बनी 1। ये इसको देखना यहाँ से, ये वैल्यू बनी 1, कॉइन रोल ने क्या वैल्यू दी 3, ड्रॉ वाली वैल्यू दी हमको। तो ये केस, ये वाला टेक्स्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला टेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, यू लॉस्ट, और ये यहाँ पर इसने लाके दिखा दिया। ऐसे ही मैं वापस से हेड देता हूँ और अब हेड्स दे दिया एंड्रॉइड ने मुझे, तो अब मैं क्या हो गया, जीत गया हूँ। वापस से टॉस करता हूँ, मैं वापस जीत गया हूँ और अब वापस से एंड्रॉइड ने मुझे वैल्यू दी टेल्स, तो मैंने क्या लॉस कर दिया गेम। ठीक है, और इमेज भी चेंज कैसे हो रही है, इमेज चेंज ऐसे हो रही है कि एंड्रॉइड जो भी अपनी रैंडम वैल्यू है उसके हिसाब से ये इमेज वाला वेरिएबल चेंज हो रहा है। इस इमेज को हम सेट कर रहे हैं या इस इमेज को हम चेंज कर रहे हैं हमारी इस वाली इमेज में। ठीक है, ये जो अपना वो है स्माइली, राइट? तो ये हमारी छोटी सी ऐप थी जो कि हमने बनाने की कोशिश करी थी और ये बिल्कुल कंप्लीटली ऐप की तरह रन हो भी चुकी है। आप देखो कि हमने जैसे टेक्स्ट को अलाइन किया था बिल्कुल ही वैसा का वैसा ही अलाइंड है। और आप इस ऐप को अगर चाहें तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जो भी ऐप बनाई है आप ऊपर ये बिल्ड वाला बटन इस पर क्लिक करें, बिल्ड बंडल्स एंड एपीकेस, बिल्ड एपीकेस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी ऐप है वो एक ईपी के फॉर्मेट में बन जाएगी और उसको आप कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, राइट? तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे लोकेट भी करनी है। आपको एंड्रॉइड स्टूडियो फुल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है इन चीज़ों की भी।
Okay, so let it just build for a while. तब तक आप लोग के और कोई डाउट्स हैं? Okay, so Android Studio has built और ये लोकेट, आप यहाँ पर लोकेट पे क्लिक करोगे, आपको ऐप डीबग मिलेगी। ये ऐप debug.apk है, इसे आप अपने फ़ोन में डायरेक्टली क्लिक करके इंस्टॉल करिए और ये ऐप बिल्कुल आपकी इसी तरीके से चलेगी और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू आप शो योर फ्रेंड्स दैट आपने एक वो बताया है, एक एप्लीकेशन बनाई है और आप इसको टेस्ट करके बताओ कि कैसी चल रही है। ओके, so guys, those who don't have any GDSCs of themselves of their college, just fill up this form that Akshat has given to you, and he will just take you under his facilitation, and you can just submit the form of your public Google profile link, और आप लोग Android Study Jams में participate कर सकते हैं। Yes. Okay, apart from this session से related आपको कोई भी doubt अभी तक इस ऐप से related कोई भी doubt, then you are free to ask to me and I will be very happy to help you out. अभी तक आपने कुछ भी ट्राई आउट किया हो एंड्रॉइड में जो आपको समझ नहीं आया हो, या फिर अभी तक कॉटलन में कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ नहीं आई हो, यू कैन जस्ट आस्क, वी जस्ट हैव 5 more minutes and we'll just help it out. What if we give input as float? Okay, so ये अगर मैंने float दे दी वैल्यू 1.5, invalid. Okay, app crashed. Why did my app crash? Can anybody tell me app crash क्यों करी यहाँ पर? देखो मैं बताता हूँ। सर क्योंकि सर आप नंबर डिफाइन किए थे ना उसके लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ पर क्या डिफाइन किया था मैंने, ये देखो एडिट टेक्स्ट, वहाँ पर मैंने नंबर डिफाइन किया था, राइट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये एक इंटीजर ही ले रहा है। ये जो मैंने एडिट टेक्स्ट की वैल्यू दी है, ये स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर रही है, इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट कर देती है, तो अब हमने क्या दी वैल्यू, फ्लोट दी वैल्यू। ये कंपाइलर समझ नहीं पाया। अच्छा, इसको डीबग कैसे करते हैं, डीबग करना भी दिखा देता हूँ आपको। देखो आपको क्या करना है, ये जो लॉककार्ड दिख रहा है आपको नीचे, एक इस लॉककार्ड पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये अभी सिंक्ड नहीं है मेरे लॉककार्ड, हाँ सिंक्ड है, ठीक है। आप जो भी एक्टिव एक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो हमारे लॉककार्ड विंडो शो ट्रैक रखता है उसका। लाइक मैंने ऐप चलाई मेरी, ठीक है, ये सारी फंक्शंस जो है वो कॉल कर लिया एंड्रॉइड ने इंटरनली, वो हमें दिखते नहीं है, राइट। मैंने एज सच 1.5 ही डाला और टॉस कर दिया, ऐप करेगी क्रैश। क्यों करेगी क्रैश, इसने रीजन भी दे दिया, ठीक है। क्या एक्सेप्शन था, फेटल एक्सेप्शन मेन java.lang.number format exception। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का क्या मतलब है कि आपने एक फ्लोट वैल्यू दी है मुझे, बट मुझे तो एक इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, है ना। आपको मान लो कि 10 आपको 20 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी और आपको किसी ने 10.5 रुपीज़ दिए। अब मानोगे क्या उसकी बात, आपकी रिक्वायरमेंट तो 10 रुपये की थी ना। तो इसीलिए इसने एंड्रॉइड ने बोला कि नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, आपने कुछ और दिया है मुझे, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। और कौन सी लाइन में एरर जनरेट हुई है, वो एरर जनरेट हुई है लाइन नंबर 40 में, लाइन नंबर 40 में, इसी लाइन में एरर जनरेट हो गई हमारी, राइट। एंड्रॉइड स्टूडियो आपको पूरा ट्रैक देता है और आप ऐसे अपनी ऐप को डीबग भी कर सकते हो। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ योर थीम, ओके। सो थीम मैंने बहुत पहले लगाई थी और आई डोंट थिंक दैट आई विल फाइंड दैट सेटिंग राइट नाउ। I'll just set you a theme because ये मैंने भी Stack Overflow से सर्च करके लगाई थी थीम, तो आप I don't think that I will find that setting right now। तो वो यहीं पे कहीं थीम सर्च करके मिलती है मुझे, because we are returning the value, okay। Yeah guys, please don't spam here because if you have filled the form then definitely you will be you will be taken into the Akshat's facilitation, but please don't spam here by sending these screenshots, okay। He will get the response of yours, hall ticket number or
You can just skip that part if you don't have any hall ticket or that enrollment number, if it is not necessary. And Akshat has also sent you the WhatsApp group link. You can just join that group and get into the part. Apart from that, do you guys any other technical related issues? Because we still have 2 minutes. We will wait till 35, and if you don't have, just ignore it. Yeah, exactly. हमारी ऐप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपको, या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो इसके अंदर, आप हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं. हम पूरी ट्राई करेंगे उसको समझाने की आपको. और ये ऐप हमारी बनके तैयार हो चुकी है. इसका जो सोर्स कोड है वो आपको हम लोग गिटहब पे डाल देंगे, और उसका जो लिंक है वो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे. Okay, so where do you have to submit the app? The app submission link will be given to you by the facilitator itself. Okay, आपके जो भी facilitator होंगे वो आपको वो link share कर देंगे, form share कर देंगे. आपको वहाँ पर अपनी app submit करनी पड़ेगी, और वो जिस format में आपसे app मांगेंगे, like if they are asking in the drive folder, or they are asking the RAR, or if they are asking the GitHub repo, आपको उस format में उसको submit करना है, right? ये जो हमने ऐप बनाई है इसे सबमिट नहीं करना है, कि जस्ट एक डेमो ऐप थी जिससे हम आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में बता पाएँ और थोड़ा सा फेमिलियर कर पाएँ कि ऐप डेवलपमेंट होता कैसे है. ठीक है, ये हमने एक बहुत बेसिक ऐप बनाई है, बाकी इतनी बेसिक ऐप होती नहीं है. ओके, बाकी लेकिन ये अच्छी ऐप है. मतलब अगर आप इसको दिखाएंगे ना अपने कभी भी रेज्यूमे वगैरह में, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपने एक बिल्कुल बेसिक लॉजिक्स बिल्ड कर करके इस ऐप को बनाया है. ओके, सो अक्षत हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अबाउट द गिटहब. तो आपको गिटहब रेपो पे उसको पोस्ट करना है, पुश करना है, और गिट रेपो को, और उसके बाद में उसका लिंक देना है. No, Kotlin extensions is a very light-weighted version, but unfortunately Android has deprecated it. Uh, it is urging the users to use only the binding, but till the time Android is not deprecating it, we are using Kotlin Android extensions, because the plugin is very lightweighted. I also use the binding, but yeah, you are exactly right. The binding takes a lot of storage. वो बहुत ज़्यादा storage लेती है, और उसको reduce करने के लिए मैंने Kotlin Android extensions use करना start कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा lightweighted है. Okay. I don't have a GitHub link. No problem. You can just go on GitHub and just sign up there and post the. आप YouTube पे videos देख सकते हैं बहुत सारी, कि YouTube पे GitHub पे हमें कैसे मतलब push करना होता है, आप अपना project कैसे डालना होता है. आप वहाँ से अपना project डालिए और उसका link दे दीजिए. Yeah, Akshat. Yes, nothing. Yes. Okay, so I guess अभी तक आपको ये पूरी app clear थी. So we'll just wind off this session. Okay, there is one question. I have an account but not link. If you have account, then just post your project there, and the link will be generated, and Akshat will tell you about the further proceedings. Yes. I will post it in the WhatsApp group. Okay. Yeah, you will get all the things regarding that Android Study Jams in the WhatsApp group itself by Akshat. Yeah, you will get the recording of this session. We will post it on our YouTube channels, and you will get the recordings of that. Okay, Manish? Okay, so with this, I would like to wind up the session. Thank you all for joining again and staying with us this long. And Android Study Jam sessions are now finally over. So इसके बाद हम कोई भी Android के ऊपर सेशन हेल्ड नहीं करेंगे. अब GDSC के थ्रू आपको एक नया इवेंट मिलेगा. अब इस सेशन को वाइंड अप करने के लिए I would like to thank you all. Good evening everyone, and wish you a very happy new year in advance. So thank you everyone for joining. So you all may leave now. Yes. Thank you everyone. Thank you everyone, especially you, Akshat, Anurag, and Tushar. Yeah. Everybody who were a collaborative part of this session. Thanks to you. Thank you, Anurag. Thanks to you, and Tushar especially for taking the sessions. And yeah, actually Tushar, I was busy with my exams, and Tushar had to take all these sessions, and
this is a really nice gesture of Tushar that he took a lot of session on behalf of us. So, Yes, yes. Yeah. okay, and thank you guys for starting the recording. I just forgot that part, so I just stopped the recording.